एक साटिन का लुंगी आ गया, लेदर जैकेट आ गया, पीला चश्मा किसी ने मुझे नहीं पहनाया था। मेरा भी मन होता है कि पीला चश्मा और लाल जूता पहनूं सिनेमा में। सब मुझे कुर्ता धोती टाइट धोती पजामा पहना देते हैं। मेरे सीन जो आते हैं ना, मेरे सीन होते हैं वो देख लेता हूँ, बाकियों का सीन भगा लेता हूँ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मतलब कई बार फिल्म मेकर की जर्नी जो होती है ना, एक बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह होती है कि इस चुनाव में जीतेंगे कि नहीं पता नहीं। Hello Pankaj ji, hello Anurag, welcome to Hindustan Times. Quite a quirky trailer. I'm really looking forward to the film now. So, getting straight to the questions. Anurag, you have described Ludo as an adventure. Pankaj has called it a road trip where you don't know what is going to happen next. So, what was the process of shooting? What does an Anurag Basu set look like? Organized chaos. So that's what my film set looks like. हम लोग तो कई बार लगता था कि दादा के सेट पे खाना खाने जाते हैं, शूटिंग करने नहीं जाते हैं। क्योंकि खाने पे इतना फोकस होता था वहाँ, और इतनी अच्छे फूड मिलते थे खाने को, बंगाली फूड, ये कौसा मांसू और फलाना और ढेकाना, तो आनंद आता था। सो लंच डिनर करने जाते थे और बीच में कुछ काम कर लेते थे ऐसे ही। हाँ, उससे खाने से जो समय बचा उसमें थोड़ी बहुत शूटिंग बचा तो शूटिंग वूटिंग हो जाती। But I guess best films वही होती हैं जिसमें cast has fun on the sets. I think that also trickles down to the audience, right? So we can expect that happening with Ludo. Yeah, absolutely. I never enjoyed so much doing a film. This is great fun. But what made you pick up an ensemble film? And you know, what are the mechanics of working with such a huge and talented cast? I think it was. I never faced any difficulty. The only difficult part was writing part actually, when you're juggling with so many genres, juggling with so many characters, and make it look like one wholesome one film. So that was the only struggle I had, and it was my own personal struggle in my study. That's it. So it was. Otherwise, everything else was going on set and having a great time and executing the film. And most of the actors I admire. They're my friends also. So it was a cakewalk. We had a great time shooting, and in fact मुझे लगा कि फट से खत्म हो गया, and सबके साथ काम करने की भूख रहेगी, जैसे पंकज जी के साथ, अरे यार ये तो खत्म हो गया, अभी कैसे, अभी नेक्स्ट फिल्म। सो ऐसे ensembles का साथ काम करके ये भी होता है कि आपकी भूख नहीं मिलती, you want to work more, दिल मांगे मोर हो जाता है फिर वो। But 2 years it took from the time you started the film to now. तो कभी वो स्ट्रेस नहीं हुआ, इतना टाइम लग रहा है, बीच में कोरोना वायरस पैंडेमिक आ गया? So was that ever there? Shooting the film never took so much time. Yeah, because there are so many actors and everybody is busy. You know, Rajkumar is very busy, Pankaj is very busy. लेकिन इसके बावजूद शूटिंग बहुत ऐसा नहीं कि हम 3 साल तक शूटिंग करते रहे। शूटिंग हो गई थी, and we were supposed to, and हम लोग अप्रैल में रिलीज भी कर देते इसको अगर कोविड नहीं आता तो। But I think it's destiny. हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है, and it was destined to be here. And maybe blessing in disguise, it will reach larger audience. Right. And Anurag, you have said, everybody, all your first choices said yes for Ludo. So Pankaj ji was your first choice to play a gangster. Matlab, where did that come from? Yes. And what was your vision for Sattu? पंकज जी बताएंगे, पंकज जी को मैंने पहले दिन क्या बोला था। पहले दिन पंकज जी के मैं मिला तो दादा ने बताया कि देखिए ऐसा कुछ नया तो है नहीं, वही है गैंगस्टर का रोल, बट इसको हम लोग नया बनाएंगे, कुछ नया बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मैं बोला हाँ बहुत अच्छी बात। और जो कहानी सुनने के पहले हम लोग 20 मिनट फालतू की बातें कर रहे थे, इधर उधर की जिंदगी की, अब मेरा तरीका क्या ये है, तो उसी में हमारा करार हो चुका था, फालतू की बातों में ही हमारी जोड़ी बैठ गई थी, अब कहानी इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो इन्होंने बोला बस बनाएंगे, मैं बोला हाँ ठीक है चलिए बनाएंगे, तो बस इतनी सी बात थी। और आई थिंक होपफुली बना है वो कुछ अलग बना है बाकियों से। पहला प्रोसेस तो जैसे आप कॉस्ट्यूम डिसाइड करते हैं ना,
कि आपका गैंगस्टर या आपका कैरेक्टर किस किस्म का द काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम वो पहनेगा। तो उसी में मेरा कुछ अलग हो गया कि एक साटिन का लुंगी आ गया, लेदर जैकेट आ गया, पीला चश्मा किसी ने मुझे नहीं पहनाया था। मेरा भी मन होता है कि पीला चश्मा और लाल जूता पहनूं सिनेमा में। हाँ, तो सब मुझे कुर्ता धोती टाइप धोती पजामा पहना देते हैं और मुझे वैसे एकदम, तो ये भले सोल से हार्टलैंड इंडिया का कैरेक्टर हो सत्तू, बट एक्सटर्नली एकदम फ्लैम्बॉयंट है और अलग है वो। तो मजा आया। तो वो जब कॉस्ट्यूम प्रिपरेशन से ही थोड़े थोड़े सुर समझ में आने लगे। फिर जब सेट पे गए 1 दिन 2 दिन पता चला, तो ऐसे करते करते मिल गया, एक रास्ता मिल गया दादा के गाइडेंस में और हो गया। आपने इतने गैंगस्टर्स के रोल्स किए हैं, डू यू एंजॉय वॉचिंग क्राइम ड्रामास टू? हमने लास्ट टाइम बात की थी, कोविड स्टार्ट हुआ था, उस टाइम आपने कहा था मैंने मिर्जापुर अभी तक नहीं देखा, हाँ, बट डू उसके यू बाद एंजॉय देखा। दिस? आपसे बात करने के बाद मैं शर्मिंदगी में देखा कि बताओ मैं बोल रहा हूँ देखा नहीं हूँ, तो मैंने देख लिया। तो अब मेरा क्वेश्चन है, 2 देखा? 5 मिर्जापुर एपिसोड 2 देख 5 अभी बचे हैं। बट वो भी भगा भगा वैसे के देखता हूँ। मेरे सीन जो आते हैं ना, मेरे सीन होते हैं वो देख लेता हूँ, बाकियों के सीन भगा लेता हूँ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एज एन ऑडियंस मेंबर आपको किस तरह के फिल्म्स पसंद हैं, शोज पसंद हैं? क्या आप क्राइम ड्रामास एंजॉय करते हैं? नहीं, मुझे पसंद है बिल्कुल स्लाइस ऑफ लाइफ, एक दूसरी अलग दुनिया की कहानियां जिसमें सिंपल लोग हों, जिसमें बहुत छोटी छोटी क्राइसिस हो, छोटा कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसमें ह्यूमर हो, जिसमें सादगी हो, जिसमें लैंडस्केप हो। लैंडस्केप मेरे लिए बहुत जरूरी है और साउंड बहुत जरूरी है कहानी सुनने के लिए। सो हालांकि लैंडस्केप तो हर कहानी में होती है, बगैर लैंडस्केप का कोई कहानी नहीं है, बट मेरा वैसे है सिंपल सादगी वाला, थोड़ा थोड़ा सा ओल्ड वर्ल्ड चार्म हो जिस कहानी में। जैसे मुझे रीजनल सिनेमा पसंद है हिंदुस्तान में। कन्नड़ की एक फिल्म थी तिथि, या कोर्ट थी मराठी में। जी। तो कोर्ट, तिथि, किल्ला, अभी चैतन्य की नई फिल्म जो वेनिस में गई है वो देखने का मन है। तो इंडिपेंडेंट स्पेस वाला फिल्म मुझे ज्यादा पसंद होता है। वो शिप ऑफ थेसिस थी आनंद गांधी की, बहुत ही कमाल फिल्म थी वो। तो मुझे वैसी कहानियां पसंद है। मुझे क्राइम ड्रामा, गोली बंदूक, गाली गलौज, ये नहीं पसंद है उतना। एंड हैविंग सेड दैट, अब तो ऐसा लगने लगा है कि आप तो गो टू गैंगस्टर होते जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के। नहीं, अभी अब झुंझुन सक्सेना में कहा था मैं गैंगस्टर। हाँ। झुंझुन सक्सेना, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स कि मेरे को ना बीच बीच में अच्छा रोल देते रहते हैं लोग। और इसमें भी लूडो में भी लोग बाहर आके, हाँ, लोग उनको ऐसे गैंगस्टर याद नहीं करेंगे। ट्रेलर से भले ही ऐसे लग रहा है बाहरी नहीं करेंगे। फिल्म देखने के मैं पहली बार रोमांस कर रहा हूँ इसमें, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी प्रेम कहानी भी है इसमें सत्तू की। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, लूडो, मतलब क्वाइट अ क्वर्की नेम, तो ये लूडो कहाँ से आया, द टाइटल? It couldn't have been a better title. It's so apt, and we were using it as a metaphor in the film while writing it. Then it became the title, and it is like Ludo. Like, it's just all the four stories crisscross each other's path. तो एक कहानी की क्राइसिस है ना, दूसरे कहानी की हैप्पी एंडिंग की वजह बन जाती है. So ये it's a domino effect. The story affect each other just like the game of Ludo. And you never know what's going to happen next and कौन किसको काटेगा, कौन जल्दी घर पहुंचेगा. So that's how the screenplay is juggled with. और कौन किसको काटा है ये तो कहानी में भी कई बार पता नहीं चलता है। एक मुझे हाँ, सही बात है। बाद में गया, हॉस्पिटल का एक सीक्वेंस है जो वहाँ मैंने किसी को काटा है और वो मालूम है ना, मुझे मालूम है। पारितोष का दादा, पारितोष वाला सीन में हाँ, करेक्ट क्यों आया, लोगों को तो हॉस्पिटल में पता चलता है कि वो क्यों आया और वो उसको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है कि ये क्यों आया है। वो अपनी कहानी बता रहा है, अब मैं हंसने लगता हूँ कि अच्छा तो तू फंसा है, ये बंदा। और पंकज जी जो है ना, इसमें डायस का काम करते हैं. He is Dias of the film. His character, decides the destiny and the fate and the end of every other stories.
you also said you are juggling a lot of, you had ideas for a few films. So the Kishore Kumar biopic and Life in a Metro sequel, are they also Many, there somewhere? नो देवर मोर टू, ये तो है ही है, ये तो मैं गिन नहीं रहा हूँ, ये तो पहले से ही है, इसके अलावा और दो थे। पर ये दो कब बनेंगे? मतलब as a fan I want to know this. I really don't know. I wish I had an answer. I really don't know. I'm again with this, facing the same question. What next? ये मतलब कई बार फिल्म मेकर की जर्नी जो होती है ना, एक बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह होती है कि इस चुनाव में जीतेंगे कि नहीं पता नहीं कि इस चुनाव का क्या होगा। जैसे आज अभी दो, ये बिहार में और यूएस में, दो स्टेट में, एक यूनाइटेड स्टेट, एक मेरा स्टेट, दोनों जगह Same चुनाव हो situation. रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, जहां जा रहा है? मतलब अब तो बिल्कुल बीच में आके खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। आपकी स्टेट का तो अभी टाइम लगेगा हमें। अभी हमारे स्टेट में थोड़ा टाइम है, 1 हफ्ते हैं, 10 दिन। हाँ, देखते हैं। यूएस अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना को क्या करे वो यूएस। हाँ। As people who came from humble beginnings made it big in the industry, was there ever a moment when you thought कि अब हो गया, मतलब now I have reached where I wanted to? What was that moment for both of you? And how is the journey different from other people who belong here? आप भिलाई से पंकज जी आप शुरू कीजिए। आप भिलाई से आप शुरू नहीं, दिक्कतें तो आई हैं, ऐसी बात, लेकिन मैं बताऊं आपको, नहीं पंकज जी आप शुरू करें, आप आंसर्स बेटर। नहीं, आप बता दो, फिर मेरे को मिल जाएगा कुछ उससे रास्ता। एक तो क्या होता है, जब आप छोटे शहर से आते हैं ना, तो आपको अपने हुनर पे इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके हुनर पे गुरूर भी होना चाहिए थोड़ा सा, तभी आप हिम्मत कर सकते हैं कि आप इस सागर में आए। आप छोटी सी बूंदी हैं, तो वहां से चल के आने के लिए आपके अंदर तो एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस वो चाहिए होता है कि आप बम्बई आएंगे, और मौके मिलते हैं आपको। बम्बई शहर ऐसा है, इंडस्ट्री ऐसा है, ये आपको बार बार मौका देती है, आज नहीं तो कल मौका देती है। अगर आप उस मौके का फायदा उठा लिए और आपने अपने आप को साबित किया, तो आपको एक और मौका मिलेगा, नहीं किए तो दोबारा नहीं मिलेगा। बस यही फर्क है। मुझे लगता है कि कुछ लोग प्रिविलेज है, उनको एक बार फेल करके दोबारा दूसरी बार भी मौका मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है। हमको पहली मौके में ही साबित करना पड़ता है, फिर उससे अच्छा काम किया उसे एक और काम मिलता है, फिर और अच्छा किया तो उसे एक और काम मिलता है। बट आई थिंक दिस इज, मैं और पंकज जी जो हैं, दो एग्जाम्पल है। हम लोग छोटे शहर से आए हैं, एकदम ही छोटे शहर से आए, एंड हमने यहाँ पे अपना पाँव जमाया। एक्चुअली मैं आपकी पंकज जी TEDx आप देख रही थी कुछ दिन पहले, अनुराग, तो you had said how you kind of built on all the small chances that came your way, which was quite inspiring. पंकज जी, थैंक यू। वही मैं वही बोलता हूँ ना कि हमें, देखो जी, आप आओगे, आपको एक बॉल मिलेंगे क्रिकेट की तरह, और उसमें आपको 7 रन बनाना है, एक छक्का और एक दौड़ के। तो मजा तो तभी है ना कि हम एक बॉल में, हम रूल बुक के बियॉन्ड जाके हमने एक 6 मार दिया, और 6 जब तक वो प्लेयर बॉल लेने गया तब तक एक रन भी ले लिया। सो आपको जो मौके मिलेंगे आप उसके मैक्सिमम इस्तेमाल करो। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो मेरे लिए 10 साल, ऑलमोस्ट 8 साल, 2004 से 12 तक जब मैं काम ढूंढ रहा था, तो वो वक्त मेरे लिए काम ढूंढने से ज्यादा मेरे क्राफ्ट पे पॉलिश करने का था, कि मैं अपनी तैयारी कर रहा था। यार जिस दिन भी अगर मिल गया कुछ भी मौका, तो हम 7 रन बनाएंगे। अगेन 7 रन बनाना मतलब अपना बेस्ट देना, ये एक मेटाफर है 7 रन की, अपना आपकी जितनी समझ है, जितनी सच्चाई है। जैसे शुरुआत में दादा ने एक बात कही कि हमारे हाथ में जितना था वो हमने कर दिया, अब रिलीज का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है। कि जो मेरा ट्रूथ उस दिन का था, जिस दिन हम शूट कर रहे थे अपना सीन, उस दिन का अपना बेस्ट करके आए हैं। हो सकता है अब मैं फिल्म देखूं तो मुझे लगे कि और इम्प्रूवमेंट हो सकती है और बेहतर हो सकता है, बट उस दिन का ट्रूथ है वो, जिस दिन हमने किया था वो। सो जिंदगी ऐसे ही है कि वो जो खाली वक्त है उसको संघर्ष का वक्त है, उसको आप अपनी क्राफ्ट पे काम करने का वक्त बना लीजिए।
आप अपने हथियार को शार्प करते रहिए, मौका मिलेगा, एक दिन आएगा और उस दिन आपको करना है, दिखाना है। सो हम लोगों की जर्नी इस बात का प्रमाण है कि ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है, ये इंडस्ट्री उतनी भी बुरी नहीं है जितनी इन दिनों कहते हैं लोग। सो ये इस बात का प्रमाण है। पर आप दोनों के वो मोमेंट क्या थे जब आप लोगों को लगा कि ये अब हो गया, अब कर लिया? Was there ever that moment? वो तो मतलब कैसे बताया जाए, कोई एक ऐसा टाइप तो होता नहीं है चांदनी रात में पता चले। धीरे धीरे होता है शायद। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे जिंदगी में। मेरे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। Okay, thank you very much for your time. Best wishes for Ludo. Thank you very much. शुक्रिया। Thank you so much. शुक्रिया।